بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو سینئر صحافی تجزیہ کار مرتضیٰ دورانی اور اعجاز عباسی. ناظرین، صدر مملکت آصف علی زرداری سے گزشتہ رات کو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اور جو سینئر رہنما انہوں نے اہم ترین ملاقات کی ہے. کئی گھنٹوں تک یہ ملاقات رہی ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس ملاقات میں کیا فیصلہ ہوا ہے. پھر آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور کیا وجوہات ہیں اور پیر صاحب کو وزارت کیوں چھوڑنی پڑی. پھر دوسرا وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے آج مظفر آباد میں مصروف ترین دن گزارا اور اعلیٰ سطحی اجلاس کی اور اطلاعات ہیں کہ بہت سے محکموں کو فنڈز جاری کرنے اور اس طرح سے اہم فیصلے کیے گئے. ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو سب سے الارمنگ صورتحال ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، جنگ ہے. ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر ہوا، لیکن آج بھی پاکستان نے بھرپور جو ابھی کارروائی کی ہے اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو شرم الشیخ میں جو ایک بہترین سفارتکاری کی ہے اور اس پہ پوری پاکستان میں ان کو داد دی جا رہی ہے کہ امریکی صدر نے جب ان کو اس پہ اس کو جو بلایا تو انہوں نے بر وقت جو ہے نا پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے. عباسی صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں. ایک دم یہ کیا ہو گیا افغانستان اور پاکستان کا؟ پھر آج بھی پاکستان نے بھرپور جو ابھی کارروائی کی اور کابل اور قندھار پر یہ فضائی حملے کی اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی تباہ ہوا ہے. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ مختصر سا ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ کفیل صاحب. ابھی اطلاعات آ رہی تھی کہ طالبان کی طرف سے کوئی عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پاکستان نے قبول کر لیا ہے، اور یہ صورتحال یقینی طور پر پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے بالکل کسی لحاظ سے بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اب چند جتھے، چند افراد یا چند لوگ جو گڑبڑ کر رہے ہیں، بارڈر کے اس پار کر رہے ہیں یا ادھر سے آ کر رہے ہیں یا ادھر ہی چھپے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے دونوں ملکوں کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو افغانستان کو بھی اور پاکستان کو مل کر روکنا چاہیے. اور یہ لڑائی کرنے کے بجائے اگر بہتر ہے جو ایک قبائلی روایات ہیں افغانستان کی بھی اور پاکستان کی، اس قبائلی روایات کے تحت ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان کے پاس اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح کے کچھ بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے اثرات ہیں افغانستان کے اندر اور پاکستان میں بھی ان کی بات بار سنی جاتی ہے. اور اس میں آپ عمران خان کو بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، مائنس نہیں کر سکتے. اور لیکن وہ ظاہر ہے چونکہ اس دوسری صورتحال میں، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اس وقت دستیاب ہیں ان سے، اور جو ہمارے کے پی میں بہت سارے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں خاص کر یہ دارالعلوم حقانی آکوڑا خٹک والے جو ہیں، یا پھر ایک دو اور دینی بڑے بڑے مدارس ہیں جن میں طالبان کی بیشتر لوگ یہاں پڑھے لکھے ہیں اور وہ ہیں، اس کو اگر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے. لیکن افسوسناک بات کفیل صاحب یہ ہے کہ اب یہ چونکہ ظاہر ہے جنگیں ہیں اور اس طرح کی حکمت عملی تو ہم اس طرح کے اسٹریٹجی کے معاملات نہیں سمجھتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ افغانستان کو ہم جو پاکستانی لوگ ہیں، ہماری قیادت فوجی ہو یا سویلین قیادت ہو سیاسی، وہ کے پی کے نہ سمجھے. افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. اس کی ہر دور میں اس کے اندر ایک بغاوت رہی ہے. ہر دور میں اس نے کبھی بھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی، نہ انگریزوں کی نہ امریکہ والوں کی نہ برطانیہ کی نہ روس کی. اور وہ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی غیر ملکی حملہ اور ان کے اندر اوپر نہیں آتا تو وہ آپس میں لڑنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ماحول ہے، یہ ایک ایسا کلچر ہے وہاں کا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھ کر چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سخت صورتحال ہے، اس میں چین کا بھی ایک رول بنتا ہے، وہ کشیدگی کم کرا سکتا ہے. ایران کا بھی ایک رول بنتا ہے، دونوں کے ساتھ بہت شاندار یکساں تعلقات ہیں. سعودی عرب کا ایک بہترین رول بنتا ہے، قطر کا ایک بہترین رول بنتا ہے. یہ جو ہمارا ترکی ہے اس کا ایک بہترین رول بنتا ہے. ان ممالک کو فوری آگے آنا چاہیے اور اس سے لڑائی سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. پاکستان ظاہر ہے فضائی لحاظ سے افغانستان کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ملک ہے. فرض کرتے ہیں فضائی لحاظ سے ہم دبا بھی لیتے ہیں، تب بھی ظاہر ہے ہم نے آخر مل جل کر رہنا ہے.
ہماری قبائلی پٹی اس طرف بھی اس طرف بھی ایک ہی کلچر کے، ایک ہی زبان کے اور ایک ہی سماج رکھنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان چیزوں کو اتمام حجت کے لیے اگر مل بیٹھ کر وہی جو ایک روایات ہیں ان کے تحت چیزیں اگر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ دونوں قوموں کا بھلا ہوگا. اس طرف والے لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرف والے لوگوں کو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ یعنی ایسے حالات میں جب پاکستان کا عالمی یعنی سطح پہ کہ یعنی امیج جو ہے نا وہ بڑھا ہو اور یعنی بھارت کے ساتھ جو مختصر جنگ ہوئی ہے تو پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے. تو ایسے موقع پر ایک دم جا کر افغان سرحد کا کھلنا اور پھر وہاں سے دہشت گردوں کا پاکستان پر آسانی کے ساتھ آ کر حملے کرنا، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی بڑی سازش ہے یا یعنی ایسے ہی کہیں جذبات میں کوئی لوگ آ گئے؟ نہیں راج صاحب، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو جنگ ہے اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ انہونی سی بات نظر آتی ہے، کیونکہ جو پاکستان نے افغانستان کے لیے کیا، نہیں ابھی بھی مہاجرین ہیں، 20 لاکھ سے زائد پاکستان کی جو پاکستان میں. پاکستان نے جو کچھ دیکھیں، پاکستان نہ صرف اقتصادی طور پہ کمزور ہوا بلکہ جغرافیائی اور ہماری جو باقی انٹرنل جو ہمارے مسائل پیدا ہوئے، کلاشنکوف کلچر آیا ہمارے یہاں پہ، ہیروئن کا جو ہے نا وہ وہاں سے سمجھ لیں ایکسپورٹ ہوئی ہمارے ہاں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت شاید افغانستان کے ساتھ لڑا کر کوئی اور مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ آج کل ہمارے ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مہربان بھی اسی لیے ہیں کہ ان کو وہ اب ہمیں جو ہے نا پیار محبت سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو شاید ان کو بگرام ایئر بیس چاہیے، ان کو ریئر ارتھ منرلز چاہیے پاکستان سے. اور یہ جو پٹی ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد لگتی ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ قومی اپنا خزانے ہیں، جو معدنی وسائل ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے رائے صاحب، یہ اربوں خربوں ڈالرز کے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جو جنگ ہے یا یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ وہاں سے دہشت گردوں کا آنا، اور پھر اسی دوران افغان وزیر خارجہ کا انڈیا کا دورہ، انڈیا نے افغانستان میں اپنا جو ہے نا سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ. تو یہ آپ جیو پولیٹیکل اس کو سچویشن کو اس میں دیکھیں کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب اگر ہمیں وقتی طور پر یہ دیکھا جائے کہ ٹرمپ کی جو نا دو چار میٹھی باتیں سن کے تو ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں الجھ جائیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی لانگ ٹرم جنگ ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں افغانیوں کا کیا ہم بگاڑ، ان کا تو شوق جنگ ہے نا، دیکھیں نا ان کا تو زندگی جنگوں میں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ تباہ حال ملک ہے، تباہ حال ملک ہے. لیکن ابھی افغانستان کے پاس یہ نہ سمجھا جائے کہ اب وہ افغانستان وہ والا افغانستان. اب افغانستان کے پاس اربوں ڈالر کا اسلحہ جو امریکہ چھوڑ گیا، اربوں ڈالر کے وسائل چھوڑ گئے، میزائل چھوڑ گئے، وہ سارے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. نہیں پھر انڈیا دے گا، دشمن جب آ گیا پراکسی شروع ہوگی تو اور آ جائے گا. اب آپ یہ بات ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہماری ڈفرنٹ ٹائپ کی ہے. افغانستان کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ ہماری افغانستان کے اندر روٹس ہیں، افغانیوں کے پاکستان میں روٹس ہیں، ادھر بھی سے بھی وہ آپریٹ کر سکتے ہیں، ادھر سے بھی کر سکتے ہیں. انڈیا کو اتنا آسان نہیں ہے ٹارگٹ پاکستان میں اس طرح کے معاملات کرنا. افغانی تو کئی آپ دیکھیں تیسری نسل سے وہ یہاں پہ آباد ہیں. تو یہ جو ہے نا اس چیز کو میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی کے لوگ جو ادارے ہیں وہ بڑے مائنیوٹلی واچ بھی کر رہے ہوں گے اور پھر اس کے سارے اسپیکٹ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن اوور آل جو ہماری پاکستانی عوام ہے یا ہمارے لوگ ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اس جنگ کو جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، بلکہ جو ہم وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ دہشت گردوں کے کیمپ ہیں، وہ کوئی فتنہ الخوارج ہیں، کوئی ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. لیکن سب لوگ مارے جاتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اس جنگ میں پاکستان کو الجھا کے میرا خیال ہے کہ یہ بہت لمبی جنگ چل سکتی ہے اور پھر پاکستان کے لیے یہ وہ عراق ایران والی جنگ نہ ہو جائے، کہیں مشکلات میں نہ پڑ جائیں. ابھی یہ باتیں کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، ایک طرف جو حکومت کی اتحادی ہیں ذرا وہ
یعنی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم نون ہے. اور دوسرا جو وزیر اعظم صاحب کا اپنا گروپ ہے فارورڈ بلاک ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہے جنہوں نے عمران خان سے علیحدگی اختیار کی تھی, اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھی پیر مظہر سعید جو وزیر اطلاعات تھے انہوں نے استعفیٰ دیا. تو کیا اپڈیٹ ہے کہ پیر صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے پیر صاحب کے استعفے؟ کفیل صاحب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں, سیاسی تجزیہ یہ ہم ظاہر کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے پیر صاحب نے یہ تاثر دیا ہے کہ انوار الحق کی حکومت ظاہر ہے اب چونکہ باقی نہیں رہنے والی تو اس لیے پہلے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور آنے والی نئی حکومت پہ ان کے لیے ایک راستہ بنے گا. اور پچھلے عرصے میں ویسے بھی مرتضیٰ درانی صاحب چونکہ ظاہر ہے اس سارے سسٹم کے قریب ہیں اور انہوں نے بھی اور امر محبوب صاحب دونوں نے کہا تھا جی کہ ان کی نیون لیگ کے ساتھ ان کے سرپرستوں نے ڈیل کروا دی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا پیر مظہر صاحب نے شاید یہ راستہ اپنایا ہو, یہ بھی مفہوم نکالا جا سکتا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم پر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ڈاؤن سائزنگ یہ کابینہ کی کرنے کا اور 20 وزرات تک پابندی کا وہ ہے معاہدہ, تو وزیر اعظم کی کابینہ سے کوئی بھی نہیں نکل رہا تھا تو وزیر اعظم مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. تو ہو سکتا ہے پیر مظہر صاحب نے از خود جسد دینے کے لیے بھی یہ راستہ نکالا ہوگا, میں پہلا آدمی ہوں گا جو بوجھ کم کرتا ہوں وزیر اعظم کے اوپر تاکہ باقی لوگ بھی ترغیب پکڑیں اور ریزائن کریں. لیکن اتنا یہ ہے کہ پیر صاحب کو بھی کچھ لوگوں نے استعفیٰ دینے پر برا بھلا کہا ہے جی کہ آپ نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی ہے. اب یہ دیکھیں نا, ظاہر ہے جس ملک میں کلارک کی اسامی کوئی کلارک کی پوسٹ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں بڑی بڑی ٹائروں والی گاڑیاں اور موٹی موٹی تنخواہیں اور مرات اور آگے پیچھے ہٹو بچوں والا پروٹوکول ہے, یہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے پیر صاحب نے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے یہ باقیوں کے لیے مثال ہونی چاہیے, لیکن کہاں اچھا درانی صاحب ہم اس قسمت کے مالک آپ کیا دیکھیں پیر صاحب نے کیوں استعفیٰ دی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اصل؟ پہلے تو راج صاحب یہ مجھے بتائیں کہ استعفیٰ انہوں نے وزیر اعظم کو دیا, کوئی استعفیٰ قبول ہوا, کہیں نوٹیفائی ہوا کہ یہ استعفیٰ قبول ہو گیا ہے؟ یہ ایک ویسے ٹوکن وہ جسے احتجاج نہیں ہم کرتے اسمبلی میں یا کہ ٹوکن وہ آپ سمجھ لیں کہ قسم کا ایک ہوتا ہے بیانہ ٹائپ توجہ دلاؤ نوٹ, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی, استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دیا تو اسی وقت اس کا منظوری بھی ہو جانی چاہیے تھی, پھر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوتا کہ جی آپ پیر مظہر صاحب کا جناب وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے استعفیٰ منظور کرنے کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پر شدید دباؤ ہے کہ وہ اپنی کابینہ سے مہاجرین ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ فارغ کریں, اور مہاجرین ممبران اسمبلی جو ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا, اگر ہم استعفیٰ دیں گے تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہنا, پھر ہم وزیر اعظم کو کیا کہیں گے جب ہم نے استعفیٰ خود ہی دے دینا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں وزیر اعظم کیبنٹ سے فارغ کرے, پہل کرے تو پھر ہم جو ہے نا اگلی جو ہے نا کارروائی ڈالیں کہ اسلام آباد پریس کلب پھر مظفر آباد پریس کلب میں وزیر اعظم کو چارج شیٹ کریں. یہ آپ اصل پلان ہے. تو جس پر انہوں نے کسی ذمہ دار کو بھی کہا کہ ہم اس کو چارج شیٹ کریں گے تو اس نے کہا کریں آپ چارج شیٹ اس کو. انہوں نے یہ جب بات کی کہ کریں اس کو چارج شیٹ, تو اس کے بعد بھی ابھی تک جو ہے نا یہ کشمکش جاری ہے کہ وزیر اعظم یا تو پوری کابینہ کو ڈیزالو کرے اور 20 رکنی کابینہ نہیں بنائیں, اور پھر ان کو یہ بھی نہیں لگ رہا کہ شاید وہ 20 رکنی شاید بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. کیسے بنا سکتے ہیں اگر لیٹ سپوز کہ وہ اس میں اپنے فارورڈ بلاک کے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں, اور نئی کابینہ میں دونوں پارٹیوں کے لوگ آتے ہی نہیں حلف اٹھانے یا وہ رضامندی کا اظہار نہیں کرتے, تو پھر بھی ان کی حکومت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ اکثریت کھو چکی ہے. وزیر اعظم کو رسک نہیں لینا چاہ رہے, وزیر اعظم اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ خود ہی استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں اور میں جو ہے نا اکیلا جو ہے نا وہ چلوں, یا پھر کوئی ڈمی سی عدم اعتماد پیش کر کے تو 6 مہینے میں ایسے لگاؤں ان سب کو میں جو ہے نا چھٹی کا جو دودھ یاد دلاؤں, کیونکہ پھر 6 مہینے تک تو ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا آئینی طور پہ, وہ اکیلے بھی وزیر اعظم رہیں تو ان کو کس نے ڈسٹرب کرنا ہے. تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ پیر مظہر صاحب کا جو استعفیٰ ہے اس کی تو نہ ابھی منظوری کہیں ہوئی. اگر وہ جیسا بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ترغیب کے لیے, تو ترغیب تو کوئی نہیں پکڑتا کسی کو دیکھ کے. دیکھیں نا آگے کہیں جا تو نہیں رہے ہیں کہ اس کی جو نیا جو ماز بن رہا ہے اس میں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں پیر مظہر صاحب؟ جی دیکھیں ادھر تو روایات رہی ہیں, تاریخ میں بھی رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا فلیگ لگا کے اور اسی سرکاری گاڑی میں دوسری پارٹی میں شامل ہوتے رہے, اور اگلی حکومت میں اسی گاڑی میں جو ہے نا وہ واپس آتے رہے. صرف وہ جو ہے نا حلف اٹھاتے تھے, باقی
वजारत भी वही होती थी, गाड़ियाँ भी वही होती थी। आपको पता माजिद खान साहब, इनके वालदैन, इनके अपने, इन्होंने भी यही रवायात कायम की। और भी हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने की, अकबर इब्राहिम साहब हो गए, अली शान सोनी हो गए, इन्होंने पिछली जो 2006 की असम्बली थी, 2-3 हुकूमतें जब बनी थी अदम एतमाद में, तो सेम जो है ना यही प्रैक्टिस इख्तियार की थी। तो पीर मजहर साहब ने अगर कर ली तो कोई चंबे की बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, अभी हम आते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर ने जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदा किया 4 अक्टूबर को, और उस माहिदे में एक तो यानी मतलब उसमें बेशुमार जो नकात थे, उसमें जो फौरी करने थे कि एक तो 15 दिन के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने जो हेल्थ कार्ड का इजरा करना, नोटिफिकेशन करना था, फिर इसी तरह माजरी मेम्बरान को फारग करना था, फिर जो काबीना उसमें मतलब जो राइट साइजी की डाउन साइजी करनी थी। तो ये कोई एक मामले पे भी आपके पास क्या मालूमात है? क्या जो माहिदा हुआ उस पर अमल दरामद हुआ भी है, नहीं हुआ, क्यों वजह डिले, फिर ताखिर क्यों हो रही है? ये कबील साहब, यही असल में मेरे ख्याल में इस वज़ीर आज़म का सेटबैक है। ये अगर देखा ना, काबीना तो अगले एक दिन में, वो 1 घंटे में वो रिशफल कर सकते थे, और ये आईनी वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो अपने 40 वज़रा में से 20 को छोड़कर बाकियों को फ़ारग कर देते। और जब डिफाइन लाइन खींची हुई थी कि माजीन को आपने नहीं रखना, और जो मखसूस सीटों पर जीतने वाली ख़वातीन और जो मर्द हैं 7-8 तो वो बनते हैं, वो भी फ़ारग हो जाएंगे। तो ये उनके लिए बड़ा आसान काम था। एक तो उन्होंने ये काम नहीं किया। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में जो सेक्रेटरियों के 2-3 इजलास हुए, उसके बाद इतला ये आज मैं कहीं देख रहा था कि कुछ महकमों को एक दूसरे के अंदर मर्ज करके कोई समरी एक तैयार की गई है और प्राइम मिनिस्टर को भेज दी गई है या भेजी जा रही है, वो एक चीज़ की जा रही है। अब ज़ाहिर है तीसरी बात ये थी, वो जिसका आपने नाम लिया, ये जो सेहत कार्ड, वज़ीर आज़म पिछले 1.5-2 साल से ऐलान कर रहे हैं जी कि मेरे पास 6 अरब पे रकम है या 2 अरब इस काम के लिए मुख्तस किए हुए हैं, और भी पैसे हैं मज़ीद मुख्तस करेंगे, बल्कि वो टेलीकॉम कंपनियों के पैसे जो मिले थे वो भी मेरे इशारे दे रहे थे कि मैं सेहत उसमें डालूंगा। तो इनके लिए आसान काम था कि वो फौरी कर देते। अब ज़ाहिर है जब पहले 2 साल से ऐलान कर रहे थे तो उस वायदे के बाद भी एक जारी कर देते तो वो तो एक दिन की बात थी। तो जब यही वो चीज़ें हैं जिसके बारे में वज़ीर आज़म के बारे में सियासी पार्टियों के अंदर ये बात ग्रीवेंसेस पैदा हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो पार्लिमानी ग्रुप गया था जिसे आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदे किए हैं, उसको भी इस बात के यकीन हो गया है कि ये वज़ीर आज़म दानिशा गड़बड़ कर रहा है। जो काम इसके देखो, तो आईनी मामला वज़ीर आज़म के इख्तियार में तो नहीं है, वो तो असम्बली करेगी। जो चंद सादे से एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी करने थे वो भी वज़ीर आज़म नहीं करा। तो इसका मतलब यह है कि अवामी एक्शन कमेटी और उनके दरमियान जो माहिदा है उस माहिदे को सबोताज करने की वज़ीर आज़म कोशिश कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा इनके खिलाफ एक केस है, इनके खिलाफ एक बड़ा सबूत है इस माहिदे को सबोताज और गड़बड़ करने की साजिश का, कि जहाँ जहाँ जाकर कहेंगे तो लोग यकीन करेंगे हाँ जी 15 दिन गुजर गए, वाकई फलां काम तो हो सकते थे, नहीं कर रहा। और यही नहीं, लोगों के खिलाफ झूठी FIR कटवा रहे हैं। झूठी या सच्ची ये अलग बात है। माहिदे के तहत ये था कि FIR कमीशन के तहत एक कमीशन बनेगा, पूछ कर काटी जाएंगी सारी। बहुत सारी FIR ऐसी जो इन्होंने 28-29 तारीख को काट दी थी और अभी सामने आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को दोबारा प्रोवोक करने के लिए जो एक माहिदा हुआ था, FIR दोनों तरफ से कटवानी थी और उन पर कमीशन बनना था, उससे हट कर वज़ीर आज़म मंजूर ने ये काम कर रहे हैं। तो ये वो केस है जो चार्जशीट है जो इनके खिलाफ मजबूत हो रही है, और मेरे ख्याल में यही वो बात है जिसकी वजह से अब वज़ीर आज़म को मज़ीद मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये काम ना करते, 2-3 इब्तदाई स्टेप उठा जाते, तो ये अदम एतमाद का जो माहौल हम रोज़ डिस्कस करते हैं, या अब तो हम सारी डिस्कस की बात ही नहीं रही, अब तो चीज़ें काफ़ी ऊपर चली गई हैं। ज़ाहिर है उन्होंने उन अलग बात है, लेकिन चीज़ें तो सारे लोगों को नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये सूरत हाल वज़ीर आज़म अच्छा दुरानी साहब, होती ये क्यों यानी वज़ीर आज़म साहब फिर वही ताख़िरी अरबी इस्तेमाल कर रहे हैं कि यानी जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने वफाकी वज़रा ने जाकर माहिदा किया, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लोग उसमें शामिल थे, तो फिर अभी तो एक माहिदे पे किसी एक शिक पे भी अभी अमल दरामद 2 हफ्ते होने को है। देखिए ना राय साहब, एक तो बात ये कि शायद किसी न किसी जगह से वज़ीर आज़म को ये इतला या ख़बर मिल चुकी है कि उनके ख़िलाफ़ कुछ सियासी तौर पे फ़ैसला होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं चाहेंगे कि ये सारा कुछ वो अपने हाथों से करें। जब उनको ये इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी दे दी जाएगी कि जी अब आप कंटिन्यू करें अगले इलेक्शन तक, तो फिर वो जाके इन चीज़ों की माहिदों की पासदारी करेंगे। वो अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं जो माहिदे तो वफाकी हुकूमत ने किए हैं और मेरा तो उस पर कोई दस्तखत ही नहीं है। वो तो अभी भी अपने माजरीन मेम्बरान असम्बली को ये कहते हैं कि मैंने तो आपके साथ वफा निभाई है, मैंने तो जो आपसे वादा किया था वो पूरा किया, मैंने तो किसी माहिदे पर साइन नहीं किया। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने जब कर दी है
कमिटमेंट तो क्या वज़ीर आज़म साहब वो इस मायदे पर अमल दरामद के मतलब पाबंद नहीं है वो? नहीं, वो पाबंद हैं, लेकिन वो उस सूरत में पाबंद है कि अगर वो उनको आप बाकी जो टाइम पीरियड के लिए और टेन्योर कंप्लीट करने के लिए गारंटी दें, वैसे वो किस लिए ये जो है ना एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे या नोटिफिकेशन जारी करेंगे और फिर जो है ना एक अपने गले में एक और जो है ना वो डाल के जाएंगे बदनामी का। तो मेरा ख्याल है कि उनको अगर वो इस शर्त पे करेंगे कि अगर उनको ये कह दिया जाए कि अब आपको पुरानी तनख्वाह पे आप कायम रहेंगे, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आप ये अमल दरामद करें, अभी तक उनको यकीन दहानी नहीं ये कराएगी। इसलिए वो तेज़ी में अभी आपने जो बात की कि आज उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा, वो अब जल्दबाजी में सारे काम करेंगे, फंड्स जारी करेंगे कि कोई उनके खिलाफ जब कोई पॉलिटिकल मूव हो उससे पहले वो अपने मामलात जो है वो क्लोज करने शुरू कर दें। आप देखें वो बाकी मामलात पहले करेंगे एक्शन कमेटी के साथ। क्या इजलास जो सेक्रेटरीज के इजलास के वज़ीर आज़म साहब क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें सेक्रेटरीज के साथ जो पहले चीफ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग की और जो रिपोर्टें पेश करनी थी, ये जो एक्शन कमेटी के हवाले से भी चीफ सेक्रेटरी ने कुछ जो सिफारशात पेश की कि मुख्तलिफ महकमों को मालिश कर दिया जाए, जो है वाइल्ड लाइफ के साथ जंगलात और इस तरह के, और मुख्तलिफ जो महकमे जो पहले इकट्ठे होते थे उनको इकट्ठा करके 20 सेक्रेटरियों की जो है ना वो समरी बनाने की, 20 सेक्रेटरी लेके आए, 28 से 20 आ जाएंगे सेक्रेटरी, 20 महकमे हो जाएंगे और 20 ही वज़रा हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ उसमें था। और फिर ओवरऑल जो है ना डेवलपमेंट के कामों के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कंसर्न हैं कि उनके पास 18 अरब का जो बजट पड़ा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि ये उन्होंने तो अपने लिए बचा के रखा था कि आखिरी दिनों में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब उनको लगता है कि इसी अरसे में उनको जल्दबाजी में करना पड़ेगा। तो अभी तक अनसर्टन सिचुएशन है। जो हालात जो है आज़ाद कश्मीर के वो सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं एक जगह वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, इदारे अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो अब आप इसमें देखें कि अगले चंद दिनों में क्या सिनेरियो बनता है। अगर तो वज़ीर आज़म को अगले चंद माह का जो उनका टेन्योर रहता है उसमें कंटिन्यू करने की गारंटी दी जाती है, तो वो फिर खुशी से बाकी मायदों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर नया जो है ना माज खुलने जा रहा है और एक्शन कमेटी फिर एक्शन में आ जाएगी। अब सब अभी बात है कि जो गुज़श्ता रात को जो इस्लामाबाद में आला सतही इजलास हुआ अवन सदर में, तो एक तो नाज़रीन को अपडेट कर दुरानी साहब भी यानी उस पर तफसील से बात करेंगे। क्या इतलात हैं आपके पास? ये जो इजलास हुआ सर अहम तरीन इजलास था, ये यानी यह के बाद ये तीसरा इजलास था। एक तो इस्लामाबाद में इजलास हुआ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट्री पार्टी का जरदारी उर्स इस्लामाबाद में हुआ, फिर वहाँ बिलावल उस कराची में हुआ, फिर कल अवन सदर इस्लामाबाद में हुआ। ये 3 इजलास हुए और आपके पास क्या इतला? इस इजलास में कोई निकला, कोई किसी फैसले पे पहुँचे हैं? ये देखें ना, अब ये 3 पी दर पे पीपल पार्टी का इजलास और ख़ासकर ये जो आखिरी हुआ है जरदारी साहब को ज़ारा इजलास बुलाना पड़ा, और इसको आप सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं कह सकते। अगर इन्होंने ये जो मौजूदा माहौल आज़ाद कश्मीर का इसको कंटिन्यू करना ही होता तो एक इजलास काफ़ी था। वहाँ लोगों के ग्रीवेंसेस सुन लेते और उनको कहते अच्छा ठीक है हम बिल बैठ कर हम फैसला करते हैं, आप इंतज़ार करें। इस्लामाबाद का इजलास हुआ, फिर कराची में हुआ, कराची के बाद जरदारी साहब ने इजलास बुला लिया, और ये इजलास साबित करता है कि ये सीरियसली आज़ाद कश्मीर के मामलात को पीपल पार्टी ने, जो उनके लोगों ने, पार्लिमानी लोगों ने ग्रीवेंसेस पहले इस्लामाबाद में, फिर कराची में, फिर इस्लामाबाद के इजलास में जरदारी साहब को पहुँचाई हैं, उस पर कोई पेशरफ्त डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन आपको पता है आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तब्दील करने वाली बातें हो रही हैं ना जी, को क्लर्क तो तब्दील नहीं करना कि वो जरदारी साहब उठे हैं और सारे काम छोड़कर वो आज़ाद कश्मीर के मामलात को रातों रात 1 घंटे के अंदर हल कर लें। ये हर ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में निज़ाम चलता है, वहाँ कोई लिए वो मैकेनिज़्म तय करना है, उन्होंने अपनी इत्तेहादियों से मशवरा करना है, उन्होंने ज़ाहिर स्टेक होल्डर को बताना है। इतला ये है कि आज शहबाज शरीफ से भी उनकी बात हो गई है। वैसे ये नहीं इतला की मुलाकात हुई है, लेकिन ये इतलात कन्फर्म है कि उनसे मुलाकात, उनसे रब्ता हो गया है उनका ज़ाहिर, और आज़ाद कश्मीर मामलात पर उन्होंने मशवरा कर लिया है। अभी मैं देख रहा था आर्मी चीफ की मुलाकात की तस्वीर आई हुई थी, अगरचे वो इस इशू पर नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली सियासी लोग, आपको पता है कफील साहब जहाँ बैठते हैं वहाँ कोई ना कोई बात किसी न किसी अंदाज से कर ही लेते हैं। और मेरे हाल में सारी बातें होने के बाद आखिर में कहीं उन्होंने आगाह कर दिया हुआ कि आज़ाद कश्मीर वाले भी वो ग्रीवेंसेस दूसरा तीसरा है वो भी हमने देखना है। तो आर्मी चीफ तो ज़ाहिर है इस वक्त बहुत चीज़ें देख रहे हैं। तो ये बात तो इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने बिल्कुल तय किया हुआ है कि वो आज़ाद कश्मीर में कुछ मूवमेंट करेंगे
लोगों को इंतज़ार करने के लिए कहा गया है। लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी 18 तारीख को उनका इजलास हो रहा है, ये जो CEC का वो सना कारसाज हुआ था, उसके बाद ज़ाहिर है ये सारे लोग कराची में होंगे, वहाँ से आएंगे, और ये 20 तारीख के बाद ही को मोमेंट होती है। रात को अलबत्ता एक चीज़ जो मैं दुरानी साहब की बात से मुझे याद आ गई, इन्होंने एक लफ्ज़ बोला है अभी अपने पहले सवाल में कि डमी कोई चीज़ लाना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में। लतीफ़ अकबर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है जरदारी साहब की इस इजलास से पहले कोई 15-20 मिनट या आधा घंटा। एक तो वैसे उसके मफ़हूम बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। एक तो ये है कि लतीफ़ अकबर साहब की एक अहमियत ज़ाहिर है उससे वाज़ी होती है कि उनको अलहदा, लेकिन दूसरी तरफ इतला ये है कि लतीफ़ अकबर साहब को आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली चलाने के मामला, अदम एतमाद, दूसरा तीसरा इस तरह की चीज़ों पर ब्रीफिंग ली है जरदारी साहब ने। और ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ शुलियाँ छोड़ी जा रही हैं ना, वो सारा शुलियाँ ना ये बात ठीक हो कि वज़ीर-ए-आज़म अपने खिलाफ को डमी तहरीक एतमाद लाकर उसको नाकाम बनाकर अपने लिए 6 महीने का स्पेस तलाश करें। आज़ाद कश्मीर कानून में यह है कि आपके खिलाफ एतमाद नाकाम हो जाती है तो अगले 6 महीने आपके खिलाफ एतमाद पेश नहीं हो सकते। तो कामयाब हो सकते आधे घंटे में दोबारा हो जाएगी। कामयाब होने की सूरत में तो ज़ाहिर है आपके लिए वो ज़ाहिर है उसमें दोबारा पेश कर सकते हैं। तो दीवान चुगताई साहब का नाम भी चल रहा है, और इतला ये है कि लतीफ़ अकबर साहब जरदारी साहब से इजलास ख़त्म करने के बाद रातों रात जाकर मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं, या फिर सुबह गए हैं, लेकिन बहरहाल मुजफ्फराबाद पहुँच गए हैं। और वहाँ आपको पता है असम्बली में उनके करीबी अजीज़ बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो इधर जरदारी साहब अपने लोगों को बैठकर प्लान तय कर रहे हों और उधर पता चली जी वो असम्बली में उन्होंने अपना काम गेम डाल दी है। तो लतीफ़ अकबर साहब अगले 2-4-5 दिन में मेरे ख्याल में असम्बली के अंदर ही बैठे रहेंगे और उधर ही विराजमान रहेंगे। अच्छा दुरानी साहब, लेकिन अब क्या होता है ये जरदारी साहब ही तय करेंगे। अच्छा दुरानी साहब, आप पता नाज़रीन को कि जो कल रात को इस्लामाबाद में इजलास हुआ, उस इजलास में क्या हुआ? वो ज़रा तवील तरीन इजलास हुआ, और इतनी देर वहाँ बैठ के तो क्या फैसला हुआ? देखें राय साहब, एक तो ये मुशावरती इजलास था कोई, इसमें जो लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट कर रहे थे कि जी आज कायदे ऐवान का नामजदगी होगी, नाम पेश होगा, फलां होगा, ऐसी बात तो आपको पता है बड़ी सियासी जमातों में तो इस तरह के फोरम्स पे कभी फोरम पर नहीं होती है, ना डिस्कस होती है, ना ही जो है ना वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के तो नामजदगी की जाती है। ये पीपल्स पार्टी का आपको पता है ये रवायात रही हैं कि वो आखिरी लम्हे तक जो है ना वो नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते। जब वो बिल्कुल कहते हैं ना कि 99% श्योर होते हैं तो फिर वो जाके नाम बताते हैं कि जी ये नाम है। तो अभी जो है वो जरदारी साहब ने रात को बड़ी लंबी नशिस्त की, हर MLA से, बाकी जो पार्लिमानी पार्टी के बाकी नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे, जिसमें सरदार तनवीर इलियास साहब थे और अहमद सगीर साहब थे, इसी तरह जो है वो चौधरी रियाज साहब थे, राजा चौधरी परवेज़ अशरफ साहब थे। ये सारे पार्लियामानी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन इन सब ने जो है ना वो मुकम्मल ब्रीफिंग दी, पार्लियामानी पार्टी के अरकान ने दी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है राय साहब वो ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा हैं पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले, उन सब ने भी वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ पे चार्जशीट किया आसिफ ज़रदारी साहब के सामने। और ये जो बात है ये पहली बार हुआ कि सब ने यक ज़बां होकर, मुत्तहिद होकर, मुतफ़िका तौर पर ये जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अब हम अनवार हुकूमत का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इस हुकूमत के साथ चलना पीपल्स पार्टी का मतलब उनका ये ख्याल था कि हम सियासी ख़ुदकुशी के मुतामल नहीं हो सकते, तो हमें जो है अपनी हुकूमत बनानी चाहिए। अलबत्ता ये नहीं उन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन में जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ ज़रूर था कि अनवार के साथ भी नहीं चलना, वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक जो है इनकी हुकूमत में रहना भी नहीं है और अपना वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना है। उनका फोकस ये था कि अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, जियाला वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो जिस पर आसिफ ज़रदारी साहब ने उनको कहा कि आप मेरी पार्टी हैं और मैं आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ, आपकी राय के साथ मेरी राय जो है वो मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ, तो अब मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी और बाकी लोगों से भी मुशावरत के बाद 18 तारीख के CEC इजलास के बाद फिर हम आपके साथ दोबारा एक नशिस्त करेंगे और फिर फाइनल इसको शेप देंगे। ये अब मुशावरती इजलास था, लेकिन रात सारी लोगों ने इसको हाइप क्रिएट की रखी कि जी ये अभी ये वज़ीर-ए-आज़म का नाम आ रहा है और फलान हो रहा है। ऐसी बात नहीं थी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये इस तरह तो पीपल्स पार्टी की रवायात नहीं रही हैं। पीपल्स पार्टी जब देखेगी कि उनके नंबर्स गेम पूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद अनवार उल हक साहब जब देखेंगे 27 लोग पूरे हो गए हैं, और वो एक हालांकि वैसे असूली तौर पर अभी भी 27 लोग पूरे हैं,
वो इस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने मुतफिका तौर पर कहा अनवार हुकूमत के साथ नहीं रह सकते। तो अखलाकी तौर पे तो वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, जिस तरह उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 2.5 साल से वो ये कह रहे थे कि 27 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं खुद ही घर चला जाऊँगा, मुझे घर भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो उनको अखलाकी तौर पर देख लेना चाहिए कि ये जो मामलात हैं उनके हाथ से निकल रहे हैं। अगर वो जमहूरियत के चैम्पियन बनना चाहते हैं या वो ये समझते हैं कि वो अपने वादों की और अपने ऐलानात की पासदारी करते हैं, तो उनको नज़र आ रहा है कि 27 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त, अगर आप देखें 9 से 10 लोग मुस्लिम लीग के, 17 लोग पीपल्स पार्टी के, 27 तो ये हो जाते हैं, और 8-10 लोग माजरीन के हैं और रिजर्व सीटों वाले वो भी अपना एक मास बना के बैठे हैं, तो ये 27 से 37 हो सकते हैं। तो ये ना हो कि कहीं फिर इस लपेट में जो है ना वो सदर आज़ाद कश्मीर की भी जो है ना कुर्सी आ जाए क्योंकि उसके लिए तो 36 वोट चाहिए। ये नई बात आपने कह दी है। मतलब ये हो सकता है ना, सियासत में कोई चीज जो हरफ आखिर नहीं होती। फिर बीमारी के अंदर से शायद ही खत्म हो जाएगी कि 2-3 बड़ी को एडजस्ट करने वाली बात है। देखें ना, अब मसलन ये आप सोचें कि अगर पीपल्स पार्टी ये डील करे मुस्लिम लीग के साथ कि जी हम 8-7 महीने के लिए क्यों जो है ना अनवार हुकूमत का गन साफ करने के लिए आए, तो फिर नून लीग के पास क्या रह जाता ऑप्शन? वो ये कहे जी ठीक है आप सदर भी अपना बना लें, हमें तो अगली हुकूमत पे 5 साल के लिए बनेगा, सदर तो 5 साल के लिए होगा। तो इसलिए हो सकता है लतीफ़ अकबर साहब की जो मुलाकात हुई हो वो सदारती उस हवाले से भी हुई हो, और वो सदर के अच्छे उम्मीदवार भी हैं, मजबूत उम्मीदवार भी हैं। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब फिर क्या करें? देखें बैरिस्टर साहब के अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि सदर का ऑफिस भी नॉन फंक्शनल है काफ़ी अरसे से उनकी सेहत की वजह से। वज़ीर आज़म ने तो खुद ही गैर फाल किया हुआ है वज़ीर आज़म ऑफिस को, इसलिए रियासती मशीनरी जो है राय साहब इस वक्त बिल्कुल जो है ना गैर फाल हो चुकी है, अदारे मफलूज हो चुके हैं। सदर का ऑफिस हो, वज़ीर आज़म का ऑफिस हो, वज़रा हो, सेक्रेटरीज हो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी इवन उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा, या IG ऑफिस उस तरह फंक्शन नहीं कर रहा जिस तरह ये रियासत की ज़रूरियात हैं या रियासत को जो तकाजा करती है। अब अगर ये फैसला हो जाता है कि 36-37 लोग हमारे पास हो गए हैं तो हम जो है ना दोनों काम इकट्ठे कर दें, तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, हो सकता है। तो ये क्योंकि यानी ऑप्शन ज़ेरे गौर हो सकता है। अभी नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये कह के चुप करा दिया जाए कि जी चलें आपको 5 साल के सदर भी देते हैं और 5-6 महीने की हुकूमत भी देते हैं, तो अब आप अगले जो ना टर्न हमें दें, तो ये भी जो है ना वो डील का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। अभी फ़िलहाल जो है वो अनवार उल हक साहब मुकम्मल तौर पर अपने माज पर डटे हुए। माजरीन की सीटें अगर बरकरार नहीं रहती तो ये जो मुर्तज़ा दुरानी साहब कहते हैं ये नून लीग के लिए डील बड़े बारे में होगी। आज़ाद की अच्छा भाई साहब, हमारे पास टाइम मुख्तसर है। अभी ये बात है कि जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर जिन हालात से दो चार है, और यानी जो जहाँ आज यानी मसाइल हैं, जहाँ इस वक्त रियासत जम्मू या तहरीक आज़ाद कश्मीर बेस कैंप, और आप क्या देख रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान की वफाकी पार्टी हैं जिसमें जो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनकी जो मुकामी लीडरशिप है बेख्तियार है, कोई फैसला नहीं कर पाए। अभी भी वो फैसला उनके पास इख्तियार नहीं फैसला करने। अगर ये फैसला का इख्तियार होता तो बेचारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पूरी यानी पार्लियामेंट पार्टी को इस तरह ख्वारना होना पड़ता, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी अवान सदर फला। अभी भी उनके पास फैसले का इख्तियार नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर है कि वो तमाम तर कोशिश के बावजूद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें कितनी की हैं, वज़ीर अमूर कश्मीर के साथ की हैं, मुलाकातों पे मुलाकातें, तो ये इनको क्यों नहीं इख्तियार दिया जा रहा है कि आप लोग बैठ के फैसला करें जो आप लोग बेहतर चाहते हैं, बैठ के फैसला करें ताकि आज़ाद कश्मीर बुरान से, अदम इस्तेकाम से दो चार। ये क्यों छोटे से मामले को उलझा क्यों रहे? नहीं, छोटा सा मामला नहीं है गफील साहब, एक बात हमें तस्लीम करनी चाहिए, हम ख्यालात की दुनिया से हमें बाहर निकलना चाहिए। यकायक हैं वो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत थी वो बड़ी एक लिहाज से बहुत ही कद काट वाले लोग थे, फिर ज़ाहिर है राब्ते पाकिस्तानी इदारों के साथ उनके भी थे, लेकिन सियासी फैसले वो अपने खुद किया करते थे। अब जब आज़ाद कश्मीर में ये सियासी पार्टियाँ पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की ब्रांचें हैं, तो फिर जब पीपल्स पार्टी अपनी सिंध में बैठी हुई जो ताकतवर सूबा है आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ अगर उस पार्टी को, पार्लिमानी पार्टी को इस बात का राइट नहीं हासिल, मुस्लिम लीग नून अपने पंजाब जैसे बहुत बड़े आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को इस बात की वहाँ की पार्टी के आदमी को राइट हासिल नहीं है, तो आज़ाद कश्मीर को फिरदार है। और ये पूछने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आज़ाद कश्मीर के अंदर रह कर हम जिस तनाज़र में देखते हैं, इस्लामाबाद में बैठकर, लाहौर में बैठकर या कराची में बैठकर हो सकता है उस एंगल से नहीं दूसरे एंगल से लोग देखते होंगे, इसलिए अपनी मदर पार्टियों के साथ है,
ताल मेल रखना, उनसे मशवरा करना, खासकर वो सेंसिटिव मामला जिससे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मैसेज सीधा भी और उल्टा भी दोनों कन्वे हो सकते हैं, उसमें मैं समझता हूँ ये कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और ये को रातों रात इसमें एकदम बस ज़बान से लफ्ज़ निकाला और पूरा हो गया, ये बात भी कोई तर्ज अमल ठीक बात नहीं है। वो सोच समझ के जो फैसला कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारी सियासी लीडरशिप ने कफील साहब बिल्कुल अपनी आलियत इस बात की साबित नहीं की कि इनको फुल फ्लाई इख्तियारात का इनके हवाले किए जाएँ। अगर वो करते तो ये सूरत हाल न होती। जब आप मामूली चीज़ों के लिए ढेर होंगे, अपने इख्तियारात छोड़ेंगे, अपना विजन भूल जाएंगे, अपने लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, तो फिर सरकारी मुलाजमीन के सामने ढेर हो जाएंगे, तो फिर एक सियासी लीडरशिप अगर इनको कहीं से कंट्रोल करती है तो मैं नहीं समझता कि मुझे ज़ाती तौर पर वैसे इस पर ज़्यादा कोई ग्रीवेंस नहीं है। अच्छा तो ये रातों रात इस तरह जल्दबाजी में फैसले करने के बजाय सोच समझ कर ठहर कर और सलाह व मशवरे के साथ करना अच्छी बात है, उसको करना चाहिए। उसमें अगर कल कोई नाकामी होती है कफील साहब, अगर इसमें कोई नाकामी होती है तो फैसले करने वाले जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अगर फ़र्ज करें वो इजाज़त दे देते हैं आज़ाद कश्मीर कल फिर किसी बहरान का शिकार होगा तो जिम्मेदारी आज़ाद कश्मीर वालों पर आयद होगी। इसलिए फैसला इधर से हो रहा है तो ख़राबी जो इसके क्रेडिट होगा डिसक्रेडिट होगा वो भी इन्हीं के गले लटकेगा, वो इनको कबूल करना पड़ेगा। बाकी रही है कि हम ये सोचते हैं कि अनवार अल हक साहब को जिन्होंने लाया था वो अभी उनकी सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल में हालात आज़ाद कश्मीर के अंदर से पैदा हो गए हैं कि अब वो अनवार अल हक साहब की आज़ाद कश्मीर में मज़ीद किसी गलती कमी कोताही की सूरत में जो कोई ख़राबी पैदा होगी उसकी तोक अपने गले में कोई लटकाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो कोशिश करेंगे ये सियासी लोग इनके बारे में फ़ैसला करें। चलाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, नहीं चलाते तो जो फैसला अच्छा दुरानी साहब कि यानी तमाम तर कोशिश की 1 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुस्लिम नून ने कि हम यानी वज़ीर आज़म तो बनाना है, हुकूमत लड़ने तो एक अलग ऑप्शन है। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम काबीना से निकल जाएं, इनको इजाज़त नहीं मिली, यानी हुकूमत से बाहर आना। जब हुकूमत से बाहर आने की इनको इजाज़त नहीं मिली है तो क्या अभी वाकई को फैसला हो जाएगा कि ये हुकूमत बना लें अपनी? देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत से निकलने की इनको इजाज़त की ज़रूरत थी। ये जो गुजरा थे ये खुद ही नहीं निकलना चाह रहे थे। असल बात ये है कि आप देखें कि ये थी, हम हमेशा कहते रहे ये MLAs की हुकूमत थी और अनवार उल हक साहब ने ऐसा जो वो ब्लॉक प्रीवियन का इनको नशा डाल दिया कि हर हल्के में 50 करोड़ रुपया जब आप एक MLA को दे रहे हैं साल का और सिर्फ एक CNW के ज़रिए, तो बाकी जो है ना वो ये सोचे कि उसने कभी 50 करोड़ रुपये ज़िंदगी में नहीं देखा, तो हर साल उसको अगर 50 करोड़ मिल रहा हो तो वो तो सोचेगा ना कि ये इस वज़ीर आज़म से ज़्यादा तो जो है ना मेरे लिए तो कोई भी वो मेरा मौसन नहीं हो सकता। तो आप देखें कि इन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते बना दिए अनवार उल हक साहब ने कि अब आने वाली हुकूमत जो है, आने वाला वज़ीर आज़म जो है उसके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। जैसे ये फंड्स की तकसीम है, इसी तरह जो है वो इंतज़ामी मामलात हैं, इसी तरह जो है एक्शन कमेटियाँ जो बन गई हैं इनके दौर में, इसी तरह जो इलाके पाकिस्तान के साथ का जो नज़रिया है वो जो ख़त्म कर दिया गया है, वो जितने भी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात होंगे, रियासती मामलात होंगे, सारे आने वाली हुकूमत जो है वो इतनी कंफर्ट जोन में नहीं होगी। ये आप समझ लें कि ये जो इन्होंने बुनियादें रख दी हैं और ये समझ लें कि ये बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं इन्होंने आने वाली हुकूमत के लिए। ये कोई इतना आसान काम नहीं रहा। अब अनवार उल हक साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म में उनको आप घर तो भेज देंगे, लेकिन उनके घर जाने के बाद भी जो है कई सालों तक फटने शुरू हो जाएंगे। नहीं, कई सालों तक रियासत को ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये खराज अदा करना पड़ेगा, ये रियासती अवाम को, रियासत को, रियासत पाकिस्तान को। ये इतना आसान नहीं है। ये जो कुछ उन्होंने 2.5-3 साल में बोया है ना, ये आगे आने वाली नस्लें काटेंगी ना। आपको तो पता है कि क्या नैरेटिव हमने बिल्ड कर दिया, हमने क्या जो है ना लोगों को, नौजवान नस्ल को ये कौन सा बयानिया दे दिया। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि ये शऊर की बात है और ये सारा ठीक है कि हमारे लोगों को शऊर तो पहले से था लेकिन मुतहिद नहीं थे। अब अगर एक्शन कमेटी के उस प्लेटफॉर्म पे मुतहिद हो गए हैं तो आप क्या समझते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो आप टिम्बर के डंडे से तो नहीं ना हो सकते ना मामला। कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो रवायात भी देखनी होगी, सियासी मामलात भी देखने होते हैं, आप कुछ डिप्लोमेटिक चैनल भी खोलने होते हैं। ये नहीं होता कि हर चीज़ जो है ना अपने डंडे के ज़ोर पे करानी होती है। तो मेरा ख्याल है कि अनवार उल हक साहब जो है वो अपनी लेगेसी जो है ना वो ऐसी छोड़ के जाएंगे कि आप आइंदा सालों तक याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। अवश्य शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं, बिलखुसूस जो अफ़गान सरहद पे ज़रा गैर मामूली हालात हैं और पूरी कौम को इस पर सख्त तशवीश है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान
को सलामत रखे और यानी गुज़श्ता यानी 1 साल से जिस तरह के साथ आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो पजीराई मिली और बिलखुसूस ये जो यानी इसमें 10 मई से जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग हुई है, पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और वक़ार में जो आलमी सतह पर इजाफ़ा हुआ, तो दुश्मन का शायद ये इज़्ज़त एहतराम उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही। तो लिहाजा मौजूदा हालात का तकाजा करता है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत वो अपनी नज़रियाती वाबस्तगी से बालातर, सियासी वाबस्तगी से जो बालातर होकर मौजूदा यानी इसके जो रियासत पाकिस्तान के बारे में सोचें और जितना जल्द मुमकिन हो इत्फाक़ और इत्तेहाद पैदा किया जाए। कल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।